Hello, good morning students. So today I am going to start the next examples on limits of trigonometric function. In previous video lecture we completed the exercise 7.4 and the first example. So these are the very important exercise on the limits of trigonometric function. Let us see the example number first now. In this here he has given first example, red light, limit x tends to 0, L limit 1 minus cos nx divided by 1 minus cos mx. So it is a formula 1 minus cos theta, 1 minus cos theta. That formula is what? 2 sin square theta by 2. So 2 sin square theta by 2 nx by 2 divided by 2 sin square mx by 2. So the 1 minus cos theta का formula है 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2 multiple sub-multiple angle formula. So here theta is nx, here theta is mx. So nx by 2, mx by 2. Here this 2 and this 2 cancel. So as per requirement, we divide on both side by x square. Formula satisfy करना है हमें. Sin square nx by 2 divided by x square. In the denominator, sin square mx by 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला है? साइन थीटा बाय थीटा. ऊपर थीटा है, साइन है तो नीचे थीटा है. साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज वी हैव टू satisfy the formula. Now taking separate limit of numerator and denominator, limit x tends to 0, limit x tends to 0, write whole square. This is sin nx by 2 upon x sin mx by 2 upon x. Whole यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है. सो वी राइट इन सिंगल ब्रैकेट होल स्क्वायर. सो नाउ इम्पोर्टेंट इज व्हाट वी हैव टू एडजस्टमेंट, एंगल एडजस्टमेंट. सो ऊपर एंगल nx by 2 है, सिर्फ यहाँ पर x है. सो रिक्वायरमेंट इज व्हाट? n by 2 यहाँ पर भी चाहिए, n by 2, तभी वो 1 बन जाएगा. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ न्यूमरेटर, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर इज साइन nx by 2 डिवाइडेड बाय x, ये होल स्क्वायर है. रिपीट स्टेप लिखा मैंने यहां पर, साइन mx by 2 डिवाइडेड बाय x. सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप. हियर वी हैव टू एडजस्ट द एंगल एडजस्ट करना है. nx by 2 यहां पर एक्स्ट्रा n by 2 चाहिए, सो n by 2 से डिवाइड किया, n स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाइड किया. वाई n स्क्वायर बाय 4? n by 2 का स्क्वायर कितना है? n स्क्वायर बाय 4 है. सो n स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड, n स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई. सेम इन द डिनोमिनेटर, m by 2 से डिवाइड मीन्स ऑब्वियसली m स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाइड. सो ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हियर. दिस इज 1. लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दिस इज 1. सो 1 इंटू n स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू m स्क्वायर बाय 4. सो ये 4 कैंसल. व्हाट इज द लिमिट? n स्क्वायर बाय m स्क्वायर. सो ये उसका लिमिट है. इज इट क्लियर? सो सिंपल एग्जांपल है. गो थ्रू दिस वे, यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस. सो सेकंड एग्जांपल, लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल. In first example, we clearly apply the formula, that is multiple sub-multiple angle formula. 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2, nx by 2, mx by 2. Okay, so see the second example from the same. In second example, limit x tends to pi by 6. Previous, this first example also in the form of 0 by 0. You can replace x by 0, you will get the 0 by 0 form, indeterminate form. So we make it determinate by using the formula method or apply the formula of trigonometry. See the second example. Limit x tends to pi by 6. 2 minus cosec x divided by
cot square x माइनस 3। यहां पर अगर हमने x की जगह पर पाई बाय 6 रखा तो क्या आता है, देखो कोसेक पाई बाय 6 से 2 होता है, बिकॉज साइन पाई बाय 6 1/2 है। पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, सो कोसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, सो 2 minus 2 is what? 0 in the numerator, so 0 in the numerator। cot pi by 6, cot 30 degree is √3 because tan 30 is 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सो cot 30 कितना होता है √3 का स्क्वायर 3 minus 3 0, it's absolutely 0/0 form। Here we can apply the factorization or formula, so 2 minus cosec x in the numerator, so cot square x means cosec square x minus 1, formula identity cosec square x minus 1 minus 3 as it is। This is the third fundamental identity, that is cot square x is cosec square x minus 1। After this we can simplify this, जो हमने अलजेब्रा में देखा फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, यही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, 2 minus cosec x divided by cosec square x minus 4, minus 1 minus 3 is minus 4, so this is limit extends to pi by 6, 2 minus cosec x divided by cosec square x minus 4 means cosec x minus 2, cosec x plus 2। Identity a square minus 4 means 2 square, a square minus b square, a minus b, a plus b। न्यूमरेटर में 2 minus cosec x से डिनोमिनेटर में cosec x minus 2 है, so we can change in the denominator or numerator। From numerator we can taking minus sign, it becomes cosec x minus 2 divided by cosec x minus 2 into cosec x plus 2, a term cancel, here minus 1 in the numerator, cosec pi by 6 plus 2, cosec pi by 6 is 2, 2 plus 2 is 4, minus 1/4 is the limit, so minus 1/4 is the limit of this। so यहाँ पर cot square x की जगह पर cosec square x minus 1 लिखा, और फिर यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, a square minus b square, a minus b, a plus b, ऊपर 2 minus cosec x है, नीचे cosec x minus 2 है, so माइनस साइन कॉमन निकल, ये फैक्टर कट हो गया। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दिस फंक्शन बिकम्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सो ये कट हो गया, तो वी कैन रिप्लेस x इज पाई बाय 6, cosec pi by 6 is 2, pi by 6 means 30 degree, in calculus the angle must be measured in radian, so here this is 2 plus 2 is 4, minus 1/4 is the limit। okay, let us see the example number 3rd। in example number 3rd limit extends to pi by 4, so limit extends to pi by 4, pi by 4 means 45 degree, cos x minus sin x, cos x minus sin x divided by cos 2x। सो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई की, डायरेक्ट मेथड क्या होती है कि x की जगह पर पाई बाय 4 रखो, अगर 0/0 फॉर्म में है तो भी अब हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है। कोसेक cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, 1/√2, साइन पाई बाय 4 भी 1/√2, cos 2 into पाई बाय 4, cos पाई बाय 2 0 होता है, इट्स एब्सोल्युटली 0/0 फॉर्म। ये रफ वर्क है, यहाँ पर ये लिखना जरूर नहीं, सिर्फ मैं आपको हर एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये 0/0 फॉर्म में है, तो ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बाय आइदर फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला और व्हाटएवर। सो इट इज न्यूमरेटर इज cos x minus sin x। सो देयर आर 4 फॉर्मूले फॉर cos 2x। सो cos 2x के 4 फॉर्मूले, दैट इज मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला इज cos square x minus sin square x। Second is 1 minus 2 sin square x. Third is 2 cos square x minus 1. Next is 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. So there are 4 formulae for cos 2x. So that first is cos square x minus sin square x. Second is 1 minus 2 sin square x.
third is 2 cos square x minus 1 and fourth is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. अगर यहाँ पर x है, x रहेगा तो x by 2 रहेगा. सेम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. सो यहाँ पर cos 2x है तो cos 2x का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. जो फॉर्मूले लगने वाले हैं, जब भी फॉर्मूला नया लगेगा तब मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स. cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. सो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इट इज अ आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b. cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x. a माइनस b इंटू a प्लस b. ये टर्म कैंसल. एंड फाइनली हियर वी राइट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 अपॉन cos x plus sin x. Cos x plus sin x. So this is, we can now, this is not in 0 by 0 form, so we can replace here. So limit becomes 1 upon cos pi by 4 plus sin pi by 4. Cos pi by 4 is 1 by root 2. Sin pi by 4 is 1 by root 2. See, डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, रूट टू, सो 2 अपॉन रूट टू बाई 2, रेसिप्रोकल रूट 2 बाई 2. अब रूट 2 बाई 2 को हम 1 बाई, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन एक्स. 1 अपॉन रूट एक्स होता है. रूट 2 बाई 2 1 बाय रूट 2 होता है. ये कैसे होता है 1 बाय रूट 2? इसको रैशनलाइज करेंगे हम, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. रूट 2 इज इरेशनल नंबर, मेक इट रैशनल. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 अपॉन 2 रूट 2. सो ये कट हो गया, 1 बाय रूट 2 रह गया. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन. सो रूट 2 बाय 2 इज 1 बाय रूट 2. ये हमेशा याद रखना है इसको. एक्स अपॉन रूट एक्स, ये रूट एक्स होता है. एक्स अपॉन रूट एक्स होता है. रूट एक्स अपॉन एक्स 1 बाय रूट एक्स होता है. सो ये रैशनलाइजेशन करने के बाद होता है. सो 1 बाय रूट 2 इज द लिमिट ऑफ दिस थर्ड एग्जाम्पल. So this is the completion of first 3 example. Let us see the next example on this of the same exercise, that is exercise 7.4. So देखो यहाँ पर पहले 3 एग्जाम्पल तो खत्म हुए. So one by one we can solve all the remaining example. Let us see the next example, 4 example from the third of exercise 7.4. So let us see the first example. L is equal to limit x tends to 0 cos ax minus cos bx divided by cos cx minus 1. So यहाँ पर if we replace x is equal to 0, cos 0 is 1, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0. डिनोमिनेटर में cos cx है, it is cos cx. 0 into c is 0, cos 0 is what, 1 minus 1 is what, 0. It's absolutely 0. cos 0 की वैल्यू 1 होती है. अगर डायरेक्ट रिप्लेस किया तो 0 by 0 फॉर्म आता है. सो इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करेंगे. अब फॉर्मूला देखो कोई है क्या यहाँ पर इसके लिए सुटेबल? इट इज cos c माइनस cos d. ये फॉर्मूला है cos c, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. cos c माइनस cos d इट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2. फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. ऐसे 4 फॉर्मूले, साइन c माइनस साइन d, साइन c प्लस साइन d, cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d. There are 4 formulae. That formula is called as factorization formulae, which are very very useful. ये सब फॉर्मूले लाइफ टाइम फॉरएवर लगने वाले
जब तक आप मैथ सीखेंगे, जब तक आप साइंस सीखेंगे, तो ये ट्रिगोनोमेट्री लगती है। cos c माइनस cos d, दिस इज -2 sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ax माइनस bx डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय cos cx माइनस 1। अगर इसको मैंने 1 माइनस cos cx किया, 1 माइनस cos cx, दिस बिकम्स 2 sin स्क्वायर cx बाय 2। 1 माइनस cos cx, यहाँ पर cos cx माइनस 1 है, सो इसको रिवर्स करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, सो -2 sin स्क्वायर cx बाय 2, ये -2 एंड दिस -2 कैंसल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos cx माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस cos cx है, 2 sin स्क्वायर cx बाय 2, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन लगाओ, दैट बिकम सेम। सो यहाँ से हम x कॉमन निकाले, 1a प्लस b बाय 2 इंटू एक्स इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर cx बाय 2। ये x प्लस बी एक्स कॉमन, a प्लस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2। सो नाउ डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, ऊपर भी साइन इंटू साइन है, सो रिक्वायरमेंट इज व्हाट, वी हैव टू डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखो साइन स्क्वायर cx बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं स्प्लिट करता हूँ, x इंटू एक्स, इधर एक x और इधर एक x, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, बट ऊपर का जो एक्स स्क्वायर है उसको मैंने स्प्लिट किया x इंटू एक्स, ये देखो इंटू है यहाँ पर। हियर इज व्हाट, साइन a प्लस बी बाय 2x, यहाँ पर साइन a माइनस बी बाय 2 इंटू एक्स। This is proper. Okay, so we divide on both side by x square. Why x square? Because यहाँ पर sin square है, ऊपर भी sin into sin square है, so x square रिक्वायरमेंट रहेगा डिनोमिनेटर में। so ये हो गई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अब इसके बाद रहेंगे एंगल एडजस्टमेंट। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर एंगल a प्लस बी बाय 2 है, यहाँ पर सिर्फ x है। so देखो कैसा मैं एडजस्ट करता हूँ, बेस्ट वे सेपरेट लिमिट लो न्यूमरेटर का, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a माइनस बी बाय 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन cx बाय 2 डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर लिखा मैंने, कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर। सो एज पर रिक्वायरमेंट हियर शुड बी a प्लस बी बाय 2, सो a प्लस बी बाय 2 से डिवाइड करो, a प्लस बी बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी बाय 2 से मल्टीप्लाई, जो भी एंगल है वो सेम होना चाहिए। सो a प्लस बी बाय 2 से डिवाइड, a प्लस बी बाय 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी a माइनस बी बाय 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड a माइनस बी बाय 2। डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिर्फ x है तो c बाय 2 चाहिए, c बाय 2 से डिवाइड, c स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाइड, ये समझ में आना चाहिए। वाई सी स्क्वायर बाय 4? बिकॉज c बाय 2 का स्क्वायर कितना है, c स्क्वायर बाय 4, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। सो c बाय 2 से डिवाइड, c स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई। मैं इसको राउंड करता हूँ, दिस इज 1, कंडीशन फुलफिल, दिस इज 1 and this is 1, so it becomes 1 into a plus b by 2 into 1 into a minus b by 2 divided by c square by 4. This 2 into 2 4 और ये 4 कैंसल, सेम डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड एंड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेम डिनोमिनेटर है, 4/4, 4 कैंसल. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, c स्क्वायर. ये उसका लिमिट. सो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करो. सबसे पहले यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा इज cx बाय 2. ये -2 कट. देन रिक्वायरमेंट दोनों साइड को x स्क्वायर से डिवाइड करना है. न्यूमरेटर x स्क्वायर, डिनोमिनेटर x स्क्वायर. ऊपर x इंटू x स्प्लिट किया. फाइनली एंगल एडजस्ट करना है. ऊपर जो एंगल है वही नीचे चाहिए, a प्लस बी बाय 2 नीचे भी चाहिए, तभी वो बन जाएगा 1. सो a प्लस बी बाय 2 से डिवाइड a प्लस बी बाय 2 से मल्टीप्लाई, a माइनस बी बाय 2 से डिवाइड a माइनस बी बाय 2 से मल्टीप्लाई, c बाय 2 से डिवाइड c स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज स्क्वायर है वहां पर. So finally you will get this solution, a square minus b square by 4. Okay, divide minus a square minus b square by c square. We will take next example number 2. अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2. L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स. अगर यहां पर x की जगह पाई रखा मैंने, सो दैट बिकम्स 0/0 फॉर्म. सो हाउ इट इज पॉसिबल. देखो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है. cos पाई -1 माइनस इंटू माइनस +1 1 + 1 √2 माइनस √2 0 साइन पाई इज 0. इट्स अ 0/0 फॉर्म. हर एग्जांपल में ऐसे बताऊंगा, बिकॉज अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो आगे ज़्यादा सॉल्व करने की, ज़्यादा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ x की जगह पे पाई रिप्लेस करना है. सो यहाँ पर बाय लुक दिस इज अ इरैशनल फैक्टर, सो मेक इट रैशनल. इसको रैशनल करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, -√2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स. सो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2. न्यूमरेटर a माइनस बी, a प्लस बी, दिस गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2, square of this, sin square x means 1 minus cos square x. Identity, this factor as it is, under root 1 minus cos x plus √2. ये factor as it is, sin square x का 1 minus cos square x, so this is equal to limit x tends to pi. So 1 minus cos x minus 2. अब देखो 1 minus 2 कितना होता है, 1 minus 2 is -1, 1 minus 2 is -1. So डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर -1 minus cos x, 1 minus 2 -1, ये minus cos x as it is, 1 minus cos square x के फैक्टर 1 minus cos x and second is 1 plus cos x. बाकी एवरीथिंग इज सेम, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2. ये 0/0 फॉर्म जाना चाहिए, और जिस फैक्टर की वजह से 0/0 आता है वही हमें कैंसिल करना है. सो हियर अगेन L becomes taking minus sign common from numerator, this becomes 1 plus cos x divided by 1 minus cos x into 1 plus cos x into अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2. अब ये फैक्टर कट होगा, इसकी वजह से 0/0 आता था, बिकॉज एक्स पाई है, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, सो 1 - 1 0 है, 1 - 1 0, ये कट होगा 1 प्लस कॉस एक्स. नाउ फाइनली जो रिमेनिंग फैक्टर्स है यू राइट एज इट इज. सो इट इज 1 माइनस कॉस पाई इन
ब्रैकेट 1 माइनस कॉस पाई प्लस रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2 दैट बिकम्स 4 रूट 2. सो ये इसका फाइनल लिमिट. रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2. 2 इंटू 2 4. 4 रूट 2 इज द डिनोमिनेटर. -1 by 4 रूट 2 इज द आंसर. दैट इज द कॉल्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. सो विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो यहाँ पर मैंने रैशनलाइज किया है. वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये 0/0 फॉर्म में था. रैशनलाइज करने के बाद ये 1 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के फैक्टर 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स. फाइनल दैट फैक्टर कैंसल. यू विल गेट द करेक्ट एंड एक्यूरेट लिमिट -1 by 4 root 2. So we'll see the third example. See the example number 3. Limit x tends to pi by 4. Pi by 4 means 45 degree. Limit x tends to pi by 4. Tan square x minus cot square x divided by sec square x, sec x minus cosec x. अब देखो यहाँ पर, अब अगर पाई बाय 4 रखोगे, tan पाई बाय 4 1 होता है, 1 माइनस 1. क्वाड भी पाई बाय 4 1 होता है. सेक पाई बाय 4 रूट 2, कोसेक पाई बाय 4 रूट 2. इट्स 0/0. सो ये हर बार चेक करेंगे हम. 0/0 तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बनता है क्या, देखो फैक्टराइज करेंगे. पहले फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. फैक्टराइज भी कर सकते हैं बट उससे इजीली सॉल्व नहीं होगा. tan स्क्वायर एक्स का एक फैक्टर है, दैट इज आइडेंटिटी है sec स्क्वायर एक्स -1. cot स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर एक्स -1 डिवाइडेड बाय sec एक्स माइनस cosec एक्स. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4. sec स्क्वायर एक्स -1 माइनस cosec स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस +1 माइनस इंटू माइनस +1 in the denominator sec x minus cosec x. This -1 and this +1 cancel. प्रैक्टिस करो. ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है. उसको फॉर्मूले लर्न मत करो, उसको अप्लाई करो. लर्न करना इट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले आप लर्न करोगे, और लर्न करने से फॉरएवर वो रिकॉग्नाइज होता नहीं होता. उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो. अप्लाई करने से फॉर्मूले फॉरएवर ध्यान में रख सकते हैं. सो एक इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इन द न्यूमरेटर. सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. और जो कैलकुलस अपनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसमें सबसे ज़्यादा तो ट्रिगोनोमेट्री है. तो आपको ये ट्रिगोनोमेट्री आना कंपलसरी है. तो sec x माइनस cosec x सेम डिनोमिनेटर, सिर्फ न्यूमरेटर sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x. अब ये sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे. sec x माइनस cosec x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा, sec x प्लस cosec x डिवाइडेड बाय sec x माइनस cosec x. ये फैक्टर कैंसल. अब 0/0 तो डेफिनेटली नहीं रहेगा. सो राइट वन मोर द स्टेप. लिमिट x टेंड्स टू 0, sec x प्लस cosec x. पाई बाय 4 है, 0 नहीं, पाई बाय 4 है. sec पाई बाय 4 प्लस cosec पाई बाय 4. sec पाई बाय 4 रूट 2, cosec पाई बाय 4 रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2. So this is the limit. So 2 root 2 is the limit of this function. So root 2 plus root 2 is 2 root 2. So ये बन गया इसका आंसर नंबर 3rd. Okay. Now we'll solve the number 4th example. अब देखो 4th example, final example है आज का. So यहाँ पर in the 4th example he has given quadratic equation in the numerator, but in trigonometric form है वो. मीन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स कहते हैं, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन एक्स होता है. सो एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स.
एक quadratic equation in sin x है. So example number 4. So look at the example number 4. Limit x tends to pi by 6. Pi by 6 means 30 degree. 2 sin square x plus sin x minus 1 divided by, this is the last example, 2 sin square x minus 3 sin x प्लस 1. ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. सो देखो यहां पर इसको साइन एक्स को टेम्पररी हम एक्स रखेंगे. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. इसको फैक्टराइज करना है. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टेम्पररी रखा मैंने आपको इसको फैक्टराइज करने के लिए. So 2 into minus 1 minus 2. So plus 2x minus x minus 1. 2 common. 2x common. X plus 1. Minus 1 common. X plus 1. So 2x minus 1 and x plus 1. These are the factor of numerator. Got it? सो सिर्फ टेम्पररी उसको हमने फैक्टराइज किया साइड में, उसको यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे. आप चेक करो ये 0/0 फॉर्म में डेफिनेटली होगा. साइन 30 1/2 2 2 कैंसिल 1 साइन 30 1/2 1/2 ये 1 ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये 1/2 ये 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1 0. चेक करो आप डेफिनेटली 0/0 है, नो डाउट. So 2x minus 1 x plus 1, we write 2 sin x minus 1 or sin x plus 1 are the factors of numerator. Factorize किया हमने. This is a quadratic equation in sin x. This is a quadratic equation in sin x, right? So we can factorize. अब सेम यहाँ पर देखो क्या है, दूसरा है 2x square minus 3x plus 1. 2x square minus 3x plus 1. इसके factors find करेंगे. 2 into 1 2. So here minus 2x minus x plus 1. Minus 3x को minus 2x minus x किया. So minus 2x common x minus 1. Minus 1 common x minus 1. So first factor x minus 1. Second factor 2x minus 1. So write in the denominator this is a 2 sin x minus 1 and second factor is sin x minus 1. So x की जगह पर आप sin x रखो आप अपने एग्जाम्पल में. सो दिस बिकम्स द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर. सो टारगेट कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से ये 0/0 आता था वो कैंसिल हो गया. ये एब्सोल्युटली रफ वर्क है, इसकी जरूरत नहीं इसमें लिखने के लिए. सिर्फ कैसे फैक्टराइज करना है वो बताया मैंने. तो सिंपल है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना क्या है. सो न्यूमरेटर इज sin x plus 1, डिनोमिनेटर इज sin x minus 1. अब यहां पर x की जगह पर π/6 रखेंगे. sin π/6 plus 1 sin π/6 minus 1. sin 30 is 1/2 minus 1 1/2 plus 1. ऊपर प्लस 1 है, नीचे माइनस 1 है. 1/2 plus 1 1/2 minus 1/2 plus 1 3/2. 2x minus x करेक्ट है. 2x minus 1 यहाँ पर 2x कॉमन x minus 1 कॉमन करेक्ट है. 3/2 1/2 minus 1 is minus 1/2. ये 2 and this 2 cancel. 3 upon minus 1, it is absolutely minus 3. So minus 3 is the limit of this example number 4. So okay, so these are the fourth example of the third from the same exercise 7.4. So देखो आज 7 एग्जाम्पल हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. सो अब कल हम कुछ अलग मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बट आर्टिकली सेम लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. बट नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. दिस फैक्टराइजेशन, यहाँ पर फैक्टराइजेशन, यहाँ पर फैक्टराइजेशन, ये रैशनलाइजेशन, ये सब फेल्योर जब होते हैं तब हमें अप्लाई करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हेन फैक्टराइजेशन मेथड, सिंप्लीफिकेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड इज एब्सोल्युटली फेल्योर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन वी हैव टू अप्लाई द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. For these limits of trigonometric function, we'll see on tomorrow. So today I will stop here. Thank you very much.